राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइज एंड ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल का जो चैप्टर है उसका ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसको देख के आपने असाइनमेंट 5 करनी है, तो असाइनमेंट 5 के साथ रिलेटेड है। लेट मी शो यू असाइनमेंट 5 अगेन। उसमें केस स्टडी है आपके लिए, और आपने ये जो कॉन्सेप्ट है उसको केस स्टडी के हिसाब से सॉल्व करना है। लेट्स सी द टेक अ लुक एट assignment 5 again. Right. Okay. Um, so what does the first part say? KG, discuss the paradox of companies growing in size. जैसे पहले समझाया था. How has Tapal Group tried to resolve this paradox? ठीक है. When the companies grow in size, they become inflexible. When the companies grow in size, they become unresponsive. ठीक है. तो आपने पहले तो ये बताना है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. To say that the Tapal Group first consolidated, and Aftab Tapal made this small company started by his grandfather, and he increased the size 100 times. लेकिन साइज इंक्रीज के बारे में एक बात याद रखना, जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ फिगर के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि वो पिछले फिगर के ऊपर बेस होती है. तो अगर बेस उसकी स्मॉल है तो कि अगर वो डबल भी हो रही है तो इन वॉल्यूम टर्म्स तो इतना ज़्यादा उसका स्पेस, उसका मार्केट साइज तो नहीं होता ना, यानी मार्केट शेयर तो नहीं होता. लेकिन अब ग्रोथ अचीव करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो यानी जो ग्रोथ ये इसकी ग्रैंड डॉटर अचीव करेगी, महविश टपाल उसका जो नाम है, अब उसकी करंट, he's a director, but actually, according to this the case study which you're going to go through, पता चलता है कि वही चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रही है. So now when she is growing to grow, so certainly she has to achieve much larger volumes even to grow, you know, uh, by few percentage points, like 4-5% अगर growth है तो वो क्योंकि अब एक मार्केट लीडर बन चुका है फर्म, तो उसके लिए ग्रो करना अब ज़्यादा मुश्किल है. तो ये ग्रोथ की को वो मेंटेन कर सकते हैं क्या? वो अपना जो है वो मार्केट लीडरशिप को, मार्केट शेयर को मेंटेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर जाइंट्स? ये एक बड़ी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन थी आफ्ताब टपाल के पास, जब उसने कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू लेट माय डॉटर टेक चार्ज. और वो उसका यही तरीका था इसको रिजॉल्व करने का, पैराडॉक्स. when he allowed his daughter to take charge, and when he shifted the authority from his own generation to the next, which was foreign qualified and had very different ideas about how to structure the company. तो configurations change करने की permission उसने दे दी मरियम, सॉरी व्हाट्स हर नेम, महविश टपाल को. उसने उसको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की परमिशन दे दी, और उसकी वजह वही थी कि ही रियलाइज्ड कि ये पैराडॉक्स जो है of becoming large, it is going to then make the company unresponsive. It is going to make the company uh, un competitive. तो उससे अवॉइड करने के लिए, इस पैराडॉक्स को अवॉइड करने के लिए, this is how he resolved that that they he decided to allow his daughter, Aftab Tapal, to allow his daughter to make the required changes. अब वो required changes भी उसमें लिखे हुए हैं. ठीक है. तो अब क्या बताना आप? तो जी required changes क्या है? To make new organizational forms. ठीक है. Organizational forms, decentralized authority, and cut through layers of hierarchy. Cut through layers of hierarchy. Do away with the old guard which have become the organization men who think more like bureaucrats, who think more according to those lines, which they have been adopting throughout the 90s, 80s, and 90s, which were very successful at that time. Yes, they helped to build up the company, but will they be able to take the company forward? Well, when you look at it from the paradox point of view, then large companies, if they don't innovate,
okay, and they don't bring in new blood, then they will simply optimize. They will not innovate. For this innovation to take place, you need the fresh mind. So that they were also included. So ये जो सारी organization new organizational configurations हैं, ये आफ्ताब realized he couldn't do it himself. He had to allow his daughter to take the reins. Only then she would be able to turn the company around and make sure that the gains which he had so painstakingly achieved, they would, um, in the future, the company's future would be secure because the company would be innovating. So that is why there is a lot of difference between the 1990s, even the 2000s, and today. Okay, from the 2000s even, it's 20 years since then. There's a lot of technology. People's tastes are changing. Okay, so the way of doing business is changing. The world has become a global market, right? So and the competition is also becoming increasingly severe. So that is why जो बिल्कुल international best practices हैं, they need to be adopted, and for that, you need to have a new and agile company. Having said that, उसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं, और वो हम आगे जाके देखते हैं कि कंपनीज जो हैं वो अ, जब अगली स्टेज पे गुजरती हैं तो उनको किस किस किस्म के क्राइसिस को ढूंढती है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपने यहाँ से आपने मेरे लेक्चर को देख के आपने बताना है कि ये पैराडॉक्स है क्या, ठीक है, एंड रीड इट फ्रॉम दिस बुक, यू नो try to explain this diagram, read it from the book, get the explanation from my lectures, then read the case study, and from there take out different parts which help you to establish that really this firm is still very successful, because what it has done to resolve this paradox has worked. It has actually become a उसको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने के लिए उसने बड़े डिफिकल्ट डिसीजंस लिए हैं। दीज आर नॉट स्मॉल डिसीजंस, दीज आर वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस, बट सो उसने जो है वो ओल्ड गार्ड को ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैन थे उनको उनको ही हैज शी हैज लेट देम गो। दैट मेक श्योर कि जब आप वर्ड टर्मिनोलॉजी जो है जब केस स्टडी में से निकालो तो टर्मिनोलॉजी यहाँ की यूज करो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, शी हैज लेट गो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैन, so that is how she is resolved. Okay, instead of going only for optimization, she has opted for innovation. Key examples of them. Okay, how she has done that. She has she has cut through layers of hierarchy, which means that she is not running the same business like in the old way, which means it's not just about volumes anymore. She is trying to create products which are high value products, right? So she is uh, you know तो वो उस हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो है वो इनोवेट करने की कोशिश कर रही है, और पूरी उसकी जो स्ट्रेटजी है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एंड शी इज ट्राइंग टू गेट द बेस्ट माइंड्स ऑफ टुडे, लाइक maybe her father got in the old times, but she's not continuing with them. It's a very competitive world, so she's let go of these organization men anyway. अब अगला जो उसका क्वेश्चन है वो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट नंबर 5 इज रिलेटेड टू लाइफ साइकिल। व्हाट इज लाइफ साइकिल? ये एज से रिलेटेड है। एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल विच सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर born, grow old and eventually die. Organization structure, leadership style and administrative systems follow a fairly predictable pattern through stages in the life cycle. Stages are sequential and follow a natural progression. तो ये जो लाइफ साइकिल है, as companies are created and as they decline and grow, they follow certain well established patterns. और हर पैटर्न हर जो टाइम पीरियड होता है या जिसको स्टेज कहें, जो स्टेज है वो बेसिकली टाइम पीरियड है, उसमें जो है वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाइल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टाइल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है।
और अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इन डिफरेंट स्टेजेस, इन डिफरेंट टाइम, एज ब्रैकेट्स, जो कि इसको स्टेजेस कहा जा रहा है. तो दी फर्म्स हैव टू अडॉप्ट different structures and different leadership styles. So let's see, what does theory tell us? Research on organizational lifestyle suggests that there are four main stages uh, uh, characterizing organizational development. और ये यहाँ पे 9.3 को गौर से पढ़ें. ओके, ये हर फेज को क्लियरली दिखा रहा है. विल कम बैक टू दिस. पहले हम अलग अलग हर स्टेज को, as you can see, ठीक है. entrepreneurial stage, collectivity stage, formalization stage, collaboration stage. यहाँ बहुत यंग है, यहाँ पे ओल्डर, यहाँ ओल्ड हो रही है. ये स्टेज का मतलब ये है कि here it is very young and here it is getting older. ठीक है, in terms of time. आपकी जो फर्म है वो तो जाहिर है 1947 में बनी हुई है, तो एज लॉन्ग यानी पाकिस्तान और उसका एक ही एज ग्रुप है. तो अब क्या है कि वेल लेट्स सी इसने किस तरीके से इवॉल्व किया. आपने भी उसी को स्टडी करना है. और अगर आप ये पैटर्न देखो जो थ्योरी में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी इसी रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च से इन्होंने बनाए हैं. और आप ये देखेंगे कि जो पैटर्न है टपाल का, वो भी इसी इसी को फॉलो कर रहा है जैसा कि हम थ्योरी में पढ़ते हैं. आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी जो कि आपने फाइंड आउट करके लिखनी है. अच्छा, अब so first we need to look at the different stages. कौन-कौन सी stages हैं? When an organization is born, the emphasis is on creating a product or service and surviving in the marketplace. The founders are entrepreneurs and they devote their full energies to the technical activities of production and marketing. The organization is informal and non-bureaucratic. The hours of work are long. Control is based on owner's personal supervision. Growth is from a creative uh, growth is from a creative new product or service. ठीक है, एग्जैक्टली यही चीजें आप टपाल के केस में भी देखेंगे. ऑन्टरप्रेन्योरियल स्टेज क्या है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्रिएट किया जाता है, तो उस वक्त जनरली आदम अली तपाल ने अपनी सारी एनर्जीज दी. ठीक है, जहाँ पे वो एक छोटी सी शॉप पे बैठा हुआ था, वहाँ उसने एक ऐसा ब्लेंड बनाया जिसका टेस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया. ठीक है, जोधिया मार्केट में, छोटी मार्केट होगी आपके राजा बाजार टाइप इन कराची, प्रॉबेबली गूगल कर ले, देख ले कैसी है. प्रॉबेबली एक ये जो होलसेल मार्केट्स होती हैं उस टाइप की जगह पे वो बैठा हुआ था एक छोटी सी दुकान लेके, और उसने वहाँ पे एक ऐसा ब्लेंड बनाया जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया. ठीक हो गया ना. तो अब उसका जब ग्रैंड सन आया, उसके बेटे ने तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया बिजनेस में. जब उसका ग्रैंड सन आया तो उसने कहा कि भाई मैंने तो इसको और ज़्यादा जो है वो अपनी कंपनी को स्ट्रेंथन करना है, ग्रो करना है और इफेक्टिव बनाना है. ठीक है ना. इन द लॉन्ग रन मैंने अपनी एक ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश करनी है which will survive over time. And so he had a good product, but then he innovated. He made it into a brand. That's what he did. So he created a new product. यहाँ पे आप बताएंगे एग्जैक्टली उसने किया क्या. ठीक है, तो पहले वो इनफॉर्मल एंड नॉन ब्यूरोक्रेटिक था. छोटी सी दुकान में बैठा हुआ है, वहाँ क्या ब्यूरोक्रेसी होनी है? आप खुद ही देख लें, जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो इनफॉर्मली होती है ना, और नॉन ब्यूरोक्रेटिक ही होती हैं. तो खुद बताएं. बट जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होती जाती हैं उसके अंदर उन्हें और ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करना शुरू, मैनेजर्स रखने की ज़रूरत पड़ जाती है. तो जब मैनेजर्स रखने की ज़रूरत पड़ जाती है तो रूल्स होने शुरू हो जाते हैं. फिर लोगों की आपस के अंदर एक, उनको कंट्रोल करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप होती है. ब्यूरोक्रेसी का सिंपल से मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन. दैट्स इट, नो कंफ्यूजन. रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अथॉरिटी. ठीक है, जब एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेज पे होती है तो तब आपको ये अथॉरिटी की जरूरत ही क्या है? 2-3 तो लोग हैं पूरी कंपनी के अंदर जो सारे काम कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं है. वो इनफॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, छोटी सी कंपनी है. ठीक है, एक एक एंटरप्रेन्योर है जो सुबह दोपहर शाम रात जो है वो बैठा हुआ है अपनी दुकान के ऊपर, और ही इज मेकिंग श्योर कि उसके पास बेस्ट क्वालिटी चीज़ें आती हैं और वो लोगों को भी फुल्ली जो है वो सेटिस्फाई करता है. वन ऑन वन उसकी डीलिंग होती है. ऐसे होता है ना एंटरप्रेन्योर. तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सनल सुपरविजन करता है. तो वो जोधिया मार्केट में जब तक दादाजी बैठे हुए थे आदम साहब, तो कर रहे थे ये सब कुछ. उसके बाद आ गया आफ्ताब साहब. उन्होंने कहा कि जी अच्छा ठीक है, बिजनेस तो हमारा बहुत अच्छा, प्रोडक्ट तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैंने ग्रो करना है तो मैंने न्यू प्रोडक्ट मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी. नहीं तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि
एक छोटे ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, आप इन एंड अराउंड अपने देखो, और फूड बिजनेस में तो बहुत ही ज्यादा है ये फैमिली का, लोगों के जो है वो नाम अब तो बन गए हैं लाहौर में, इधर का तो खैर मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो, यू कुड इवन लुक एट प्लेस लाइक सेवर फॉर एग्जांपल, स्टार्टेड ऑफ स्मॉल, वेरी स्मॉल शॉप, और ऐसे बहुत सारे आपके लोकल बिजनेसेस हैं जो कि ब्रांड नेम्स बन सकते हैं। लाहौर में बहुत सारी ऐसी है, जैसे चमन एक आइसक्रीम है, आई नो अबाउट दैट, व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल शॉप इन हॉल रोड, बट बहुत अच्छी उसकी थी, उसके बाद उसने बहुत सारी अपनी ब्रांचेस खोले, लेकिन सिर्फ ब्रांचेस ही खोली नहीं थी, उससे ज़्यादा बड़ी इनोवेशन की ज़रूरत होती है अगर अगले स्टेज के ऊपर जाना है, ठीक है। बट यहाँ पे ये हुआ कि आफ्ताब ने, आप ये देखें कि उसने जो है, इसके बाद क्या आता है, एंटरप्रेन्योरियल स्टेज से बहुत कम फर्म्स निकलती हैं, ठीक है, बहुत ही कम फर्म्स निकलती हैं जो एंटरप्रेन्योरियल स्टेज से अगली स्टेज तक ग्रो करती हैं, तेजी से ग्रो करती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्राइसिस ऑफ लीडरशिप आ जाता है। As the organization starts to grow, the larger number of employees cause problems. फिर वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ चीज चली जाती है। द क्रिएटिव एंड टेक्निकली ओरिएंटेड ओनर्स आर confronted with management issues, but they may prefer to focus their energies on making and selling the product, or inventing new products and services. At the time of crisis, entrepreneurs must either adjust the structure of the organization to accommodate continued growth, or else bring in some strong managers who can do so. तो ये क्राइसिस लीडरशिप, अगर इसने जोधिया मार्केट से निकलना था तो उसको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए थी, जो कि आपकी केस स्टडी में प्रोवाइड किया आफ्ताब टपाल ने, ठीक है ना। अगर ये ना होता, आफ्ताब टपाल ना होता, जैसे उसका बाप तो इंटरेस्टेड नहीं था उस बिजनेस को ग्रो करने में, तो फिर वो या तो शॉप छोटी सी उधर ही रहती, और इवेंचुअली ये है कि दे वुड गो इनटू सम अदर बिजनेस, और उसको एक ट्रेडिशनल तरीके से, जिस तरीके से बिजनेस होते हैं वो करते रहते। लेकिन लोगों के पढ़े लिखे होने का यही फायदा है ना, कि दे स्टार्ट टू से कि यार इसकी ब्रांडिंग की जा सकती है, मेरी प्रोडक्ट को मैंने ग्रो करना है, तो फाइंड आउट न्यू वेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस वो इस किस्म की लीडरशिप प्रोवाइड करता है, ऐसे लोग लेके आता है, अपनी टीम बनाता है। और अगर ये टीम ना बन सके तो फिर वो एंटरप्रेन्योरियल स्टेज के बाद या तो उसमें स्टक रहेंगे, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो मुमकिन है, कमोडिटीज के बिजनेस में मुमकिन है कि वो, ये जो बिजनेस है ये तो एक आपका कमोडिटी का बिजनेस है ना। व्हेन टी इज नॉट अ ब्रांड देन इट्स अ कमोडिटी, लाइक चीनी बेचना, शुगर, ठीक है, वो एक कमोडिटी का बिजनेस है, इट्स वेरी लुक्रेटिव, ठीक हो गया ना। लेकिन क्या है कि आप थैलों में लाके और उसके बाद चॉपरों में डाल के चीनी देते रहे, ये कमोडिटी बिजनेस है। या तो ये इसी स्टेज के ऊपर रहेगा, एंड यू विल बी अ शॉपकीपर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड योर चिल्ड्रन विल बी also shopkeepers unless they become educated, and which happened in the case of Tapal, and they can offer the kind of leadership. So that leadership, in this case, it's a family business. तो वो उसके grandson ने provide की leadership, or that kind of leadership can also be, that kind of leadership can also be uh, जो leadership है वो provide की कर सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स एज वेल, ठीक है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, ये ये यानी एंटरप्रेन्योरियल स्टेज, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, बिकॉज वहाँ से शुरू हो रहा है काम। इधर भी हम देखेंगे कि उसने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जिसकी टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आया। ये क्रिएटिविटी को कंटिन्यू करने के लिए अब क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, अब ये क्रिएटिविटी खत्म नहीं हुई, क्रिएटिविटी रिमेन, प्लस देयर वाज आल्सो लीडरशिप, और इसलिए वो कलेक्टिविटी स्टेज के ऊपर पहुंचता है। तो यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको you need to price, overcome this crisis of leadership, which they did। आपकी केस स्टडी में भी ऐसा ही हुआ, और आप देखेंगे, मुझे एग्जैक्टली बताएं कि जब ये जो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप था, आपका क्या ख्याल है, उसने उसे कैसे ओवरकम किया? उसने टीम बनाई ना अपनी, आफ्ताब ने अपनी टीम बनाई, उसने प्रोडक्ट्स भी ऐसी वो लेके आया कि क्रिएटिविटी भी मेंटेन रहे, और उसने लीडरशिप दी बाय क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ टीम। अब जो उसको नेक्स्ट क्राइसिस आ रहा है वो यहाँ पे है, प्लीज जब केस स्टडी पढ़ोगे तो उसमें यही आएगा कि उसने ये जो डेलीगेशन वाला क्राइसिस है वो उसको आया, तो उसने उसको भी डील किया और डेलीगेट कर दिया, अपनी बेटी को दे दिया बिजनेस। तो आप क्लियरली हर चीज आपको नजर आएगी, और ये क्लियर डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली मिलती रही। ये जो लीडरशिप है और इसकी क्लियर डायरेक्शन, वेरी क्लियर इन हिज माइंड, रियली एन एक्सेप्शनल पर्सन दैट ही डिड इट।
he did it, और वो किस तरीके से उसने गाइडेंस दी और किस तरीके से उसने अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो किया टू द एक्सटेंट दैट ही टुक ऑन जायंट्स, ही टुक ऑन यूनिलीवर, इतना बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को ही टुक इट ओवर, यू नो, he competed with it, and because of his good strategies and because of his clear directions, okay, he uh, you know uh, he won from the multinational corporations as well. वजह ये है कि वो कलेक्टिविटी स्टेज पे पहुंच चुका था, ठीक है, because he had resolved this crisis of leadership. उसने अच्छी लीडरशिप देके अपनी टीम बना के अपने लोग रख के और इसने ये क्राइसिस को ओवरकम किया और ये कलेक्टिविटी स्टेज में आ गया. अब कलेक्टिविटी स्टेज में क्या होता है, if the leadership crisis is resolved, strong leadership is obtained and the organization begins to develop clear goals and directions. Departments are established along with hierarchy of authority, job assignments, and beginning डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स उसने एस्टैब्लिश जाहिर करने पड़ते हैं. वो जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करती हैं तो मुमकिन नहीं है ना, वो शॉप तो नहीं है, सिर्फ एक शॉप तो नहीं है जिसमें छोटे मोटे खाते रखे हों और दैट्स इट, और वो जो शॉपकीपर है वो बैठा हुआ है. नहीं, अब तो ये एक प्रॉपर फर्म है. तो वो देन जब आपके पास इस तरह की फर्म्स आ जाती हैं तो फिर उसके बाद उसके डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, जॉब असाइनमेंट्स इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं और डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ता है. हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा. डेफिनेटली वो सब चीज़ें established जो है वो तो आफ्ताब टपाल ने ही की ना. He provided the leadership. In the collectivity stage, employees identify with the mission of the organization and spend long hours helping the organization succeed. Members feel part of a collective. Communication and control are mostly informal through few formal structures, although few formal structures begin to appear. यानी अभी भी जो organization के जो members हैं वो अपने आप को उस organization के साथ loyal consider करते हैं. वो जिन्होंने शुरू किया था, मेनी टाइम्स क्या होता है कि जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्टेज के वो कलेक्टिविटी स्टेज में भी साथ देते हैं. ऑलराइट, ये इस स्टेज के ऊपर जो है वो रिवैम्पिंग की जरूरत नहीं है. ये एंटरप्रेन्योरियल स्टेज से जल्दी ही कलेक्टिविटी स्टेज में ऑर्गेनाइजेशंस चली जाएंगी तो वो सर्वाइव करेंगी. ये जो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है, इट हैज टू बी रिजॉल्व सून फॉर ब्रांड्स. ओके, यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरियल स्टेज यूजुअली पाकिस्तान में मेनी टाइम्स इंडेफिनेटली कंटिन्यू इसलिए करती है क्योंकि वो तो ब्रांड्स है ही नहीं ना. वो तो कंपनीज, कोई रजिस्टर्ड कंपनीज तो मेनी टाइम्स होती ही नहीं है. दे आर स्मॉल स्टोर्स, ओके, वर्किंग इन ट्रेडिशनल मार्केट्स एंड अलोंग कमोडिटी लाइंस. और पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज की इतनी ह्यूज नीड है, इतनी ह्यूज नीड है. चीनी पत्ती, अच्छा, और क्या, तेल, अच्छा, स्पाइसेस, आटा, दालें, चावल, कमोडिटीज है ना. अच्छा, जापान जो है वो कमोडिटी तो नहीं है, वो तो ब्रांड है. ओके, सो मेकिंग दैट प्रोडक्ट इनटू, तो बहुत बड़ा एक स्टेप है ना फॉरवर्ड. अब अगर आप कहो ब्रांड, तो ब्रांड को अगर एग्जिस्ट करेगा और एंटरप्रेन्योरियल स्टेज से वो निकलेगा तो फिर वो कलेक्टिविटी स्टेज तो जल्दी आ गई ना उसकी. तो कलेक्टिविटी स्टेज follows the entrepreneurial stage very quickly, because if it doesn't happen then the company simply vanishes, it dies out. And many entrepreneurial startups, majority of them fail because they cannot provide this kind of leadership. So at this leadership, once this leadership is provided, it means that the company will grow larger and it becomes a little bit more formalized. Not completely, but initially it will become formalized. अब आप ये देखें ना कि ये formalization यहाँ शुरू में कम है और एम्प्लॉय कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है. वही एम्प्लॉयज जिन्होंने एक कंपनी को खड़ा किया था वो वो फुली कमिटेड विद दैट कंपनी एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड. और इसके पास भी जो लोगों को ये लेके आया, उनको इसने एक फैमिली की तरह इसने अपने पास रखा. और इसी तरीके से 70s में इसने किया, 80s और 90s में इसने फिनोमिनल ग्रोथ ली. और जो लोग इसके पास थे, जो टीम इसके पास थी, उसने उसको एनेबल किया, इसने उनको विजन और लीडरशिप दी और उन्होंने इसके बात माना. और उसके बाद आपके सामने है एक ऐसी फर्म आ गई जो कि which achieved what it wanted to. It took on the giants, multinational giants in the tea business, and he you know, uh, the Tapal brand defeated them, right?
So you would think that now that the collectivity stage has achieved its objective, uh, can the company stay at the top? It can't, because the company has to grow older. That is the reality of life. If you achieve one milestone, it's just a milestone. So it's a journey, right? Remember, goals are milestones, which means कि एक रास्ते के अंदर वो एक जगह होती है, एक मकाम होती है, which is the highest point. But to stay on that highest point, and particularly the pinnacle, it's very difficult, you see, because there's very little space. Pinnacle, top. Pinnacle का top पे तो छोटी सी space होगी ना, which means क्या कि कंपटीशन जो है वो कोशिश यही करेगा डी सीट करे, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजीज इसने यहाँ पे अडॉप्ट की थी, अगर वो उसी को परपेचुएट करे आगे, और जाहिर है जो लोग यहाँ पे जिनकी में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वो पूरे इतने साल उन्होंने उस कंपनी को दिए, तो अब उनमें तो वो उस किस्म की एनर्जी नहीं रही, तो दे दैट इज वाई ना उनकी हेल्प देती है। और यही बात रियलाइज की है आफ्ताब टपाल ने भी कि हाँ मैंने इतने साल उस कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ट्रू, ही स्टिल इन हिज 60s एंड 70s, लुक्स प्रीटी यंग, बट वो उसके ऊपर जो है ना वो सांप बन के नहीं बैठा हुआ अपने खजाने पे, क्योंकि बेवकूफी है। क्योंकि सांप बन के वो इसलिए नहीं बैठा अपने खजाने पे कि बेवकूफी है। देखे ना क्या वो आपको बता रहे हैं, उसको वो रियलाइज करता है, चाहे उसने ये थ्योरी पढ़ी हो ना पढ़ी हो। लेकिन हम तो उसके एक्शंस को देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं ना कि वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उसने ये बात भांप ली है कि भाई अब अगर इससे ज्यादा जनरेट करनी है तो इट्स नॉट दैट ही इज डाइंग टू टुमारो, ही इज अलाइव, ही इज जस्ट इन हिज 60s, तो कोई एज नहीं होती। लोग 80 80 90 90 साल तक जो है वो को रिटेन करने की कोशिश करते हैं कंट्रोल। बट ही हैज रियलाइज्ड दैट ये एक फेज था विच ही अडॉप्टेड वेरी वेल, सो उसने वो क्राइसिस को अडॉप्ट किया। अब जो अगला क्राइसिस उसके लिए आने लगा है वो तो डेलीगेशन का है। खैर एनीवे, इसके साथ उसने कैसे डील किया ये देख लेना सारी चीजें कि उसके पास वो एम्प्लॉयज भी थे, उसने एक हायरार्की इस्टेब्लिश भी की, डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए, जॉब असाइनमेंट्स की, डिवीजन ऑफ लेबर की, और ये सब चीजें करने के लिए आफ्ताब टपाल ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को हायर किया हर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। केस स्टडी में गौर से पढ़ना, लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। So what is what he did, right? Okay, after the collectivity stage, then comes the, और फिर उसके बाद कलेक्टिविटी स्टेज के एंड पे आता है क्राइसिस ऑफ डेलीगेशन। और ये पूरी केस स्टडी है ही इस क्राइसिस ऑफ डेलीगेशन पे कि व्हेन दी कंट्रोल्स आर गिवन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये वो जनरेशन है जहाँ पे द कंट्रोल्स आर गिवन टू फ्रॉम आदम टू आफ्ताब, एंड हियर द कंट्रोल्स आर बीइंग गिवन फ्रॉम आफ्ताब टू महविश। ये क्राइसिस है डेलीगेशन का, और ये आराम से नहीं आता। उसमें पढ़े ना कि एक स्टाइल से, एक लीडरशिप स्टाइल से जब दूसरा स्टाइल जो है वो चेंज होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल बिकम इररेलेवेंट। और जो ओल्ड गार्ड था जिसने ये वाला टाइम एंटरप्रेन्योरियल और कलेक्टिविटी स्टेज से गुजारा, नाउ दे बिकम ओल्ड, दे आर नियरिंग द रिटायरमेंट टाइम। सो दैट इज व्हाई दिस अ क्राइसिस कि अब डेलीगेशन करना है, कंट्रोल देना है, किसी ऐसे बंदे को देना है जो कि इस कंपनी को रिवैम्प करे, इसका इथॉस भी समझता हो, इसका बैकग्राउंड, इसका इसका डिटेल भी समझती हो, और इसको ट्रांसफॉर्म करने का उसके पास दोनों चीजों का उसके पास एक आइडिया हो। सो दिस पर्सन इन दिस केस, ये फैमिली रन बिजनेस है, तो ही लुक टुवर्ड्स हिज डॉटर एंड ही ट्रेन्ड हर अकॉर्डिंगली। बट इन कंपनीज विद दिस काइंड ऑफ मतलब जो फैमिली कंपनीज नहीं होती, वहाँ इस स्टेज पे आके फिर प्रोफेशनल सीईओज को हायर किया जाता है। स्टेज पे आके जो डेलीगेशन होती है फिर प्रोफेशनल सीईओज को हायर किया जाता है मेनी टाइम। बट इन योर केस स्टडी इट्स सिंपल बिकॉज इट्स जस्ट अ फैमिली बिजनेस। तो कलेक्टिविटी स्टेज के एंड पे आता है ये डेलीगेशन, और ये जो क्राइसिस है इसको भी डील कर रहा है आफ्ताब, ही डील कर रहा है बाय चेंजिंग। If the new management has been successful, lower level employees gradually find themselves restricted to the strong, top down leadership. Lower level managers become to acquire confidence in their own functional areas and want more discretion and autonomy. Crisis occurs when top managers who were successful because of their strong leadership and vision do not want to give up responsibility. अब अगर टपाल जो है वो ऐसा नहीं करेगा तो देन इफ ही डजंट गिव अप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या होगा, उसकी तो फर्म एक एक एक
ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, ठीक है। टॉप मैनेजर्स वांट टू मेक श्योर दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कोऑर्डिनेटेड एंड पुलिंग टुगेदर। तो अगर वो लोगों की बात सुने और या वो ये कि वो अपनी पावर को जो है खुद से जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ना हैंड ओवर कर दे, तो उसकी उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं है। विजन तो शायद हो लेकिन एनर्जी उतनी नहीं है। सो ही वांट्स अ मोर एनर्जेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, which can deal with which can give a new vision, ठीक है, bring her own team. He allowed that. So that is the way he overcome that. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है फॉर्मलाइजेशन स्टेज पे। अब मैविश को जो मिली है अपनी टपाल टी इनकॉर्पोरेटेड, जो कि अब टपाल होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है, तो आई मीन थोड़ा सा उसने देखें कितना ज्यादा उसने चेंज किया है। नॉट गॉन पब्लिक एट द मोमेंट, वो भी मे बी इन द लॉन्ग टर्म दे कुड लुक एट दैट अगर इसने इंटरनेशनल होना है, पर फिलहाल उसने उसका होल्डिंग कंपनी बना दी है। तो देखें वो अब उसको मिली है कंपनी एट फॉर्मलाइजेशन स्टेज। फॉर्मलाइजेशन स्टेज इन्वॉल्व्स द इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स. Communication is less frequent and more formal. Okay, top management becomes concerned with issues such as strategy and planning and leaves the operations to the middle management. ठीक है, operations जो है वो middle management करने लगती है और जो top management है वो सिर्फ strategy को adopt करती है. Product groups or other decentralized units may be formed to improve coordination. Their incentive systems based on profits may be implemented. When effective, the new coordination and control systems लाने की ज़रूरत है. New coordination and control systems लाने की ज़रूरत है. Enable the organization to continue growing by establishing linkage mechanisms between top मैनेजमेंट एंड फील्ड यूनिट्स. अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बड़ी जरूरी, उसे फॉर्मलाइजेशन स्टेज पे मिला है, जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, बड़े बड़े साल से बैठे हुए हैं, उनके साथ इसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना. इसको कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है with like-minded people. So suddenly she is new, so she wants a new team, and through this team, if she can manage it well, then she can establish that kind of linkages. So the old guard has to give. Simple, it has to give, because otherwise तो वो और उसने अपना जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं उसको भी चेंज करना है. अगला सवाल ये उसी पे है कि वो कंट्रोल मैकेनिज्म्स किस तरीके से चेंज करें, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो कम्युनिकेशन है, जिस तरह कंपनी पुराने पहले से इतने दो डिकेड से 3 डिकेड से चलती चली आ रही है, उसने उस सब चीज को चेंज करना है, नए लोगों को लेके आना है, जिसका कि जो कि बिल्कुल एक ब्रांड मैनेजमेंट, एक उसने नए जो है वो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. अब ये जो रेड टेप है, ये एक ब्यूरोक्रेसी का एक खासा है. रेड टेप विच मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, हु इज रिपोर्टिंग टू हूम, हु इज इन अथॉरिटी. ठीक हो गया ना. तो जो जो द ओल्डर पीपल हु आर इन अथॉरिटी, दे नो हाउ टू डील विद द कंपनी इन अ पर्टिकुलर वे. एक कंप्लीट 180 डिग्री चेंज तो उनकी थिंकिंग में नहीं आ सकता ना, और है जरूरत इसी चीज की कि बहुत ज्यादा चेंज हो, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होगा तो कंपनी जो है वो क्या करेगी कि वो इनोवेटिव नहीं रहेगी. ठीक हो गया ना. वो जैसे पहले पिछले वाले में भी हमने देखा कि, और जो डिसएडवांटेजेस में भी देखा कि जो कंपनीज है वो ऑप्टिमाइज तो करेंगी, व्हिच मींस कि इन द few years, 5-6 years, they will remain profitable. So the old people are in the case study. You will also read. They are asking a question. Problem क्या भाई? Profitable है company, but profitable तो है. Is it growing rapidly? Is it holding on to its position as a market leader? That's a very important question. And यही सारा जो प्रेशर है ये महविश के ऊपर है. फॉर्मलाइजेशन स्टेज के जो एडवांटेजेस हैं ये देखें. फॉर्मलाइजेशन स्टेज के बाद शी नोज कि इसके बाद इसने शी हैज टू डील ये वाला प्रॉब्लम, डेलीगेशन वाला प्रॉब्लम तो उसका है. ये जो डीलिंग विद दिस क्राइसिस, ये रेड टेप वाला जो क्राइसिस है, ये प्रॉब्लम महविश का प्रॉब्लम है. महविश का प्रॉब्लम है. एंड इन द लॉन्ग रन शी ऑल्सो नोज कि अगर उसने ऐसा ना किया तो डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी और उसके बाद उसको रिवाइटलाइज करना पड़ेगा. बट एट द मोमेंट वो प्रॉब्लम अभी नहीं आई, अभी डिक्लाइन सेल्स नहीं है. सो व्हाई शुड शी रीच दैट पॉइंट? शी शुड स्टॉप इट राइट हियर by dealing with the bureaucracy right away, and she does that by simplifying people.
जो कि या मे बी आस्किंग देम, फायरिंग से ज़्यादा आस्किंग देम टू टेक फोर्स्ड रिटायरमेंट, which is a very difficult decision, but nevertheless, maybe it could be done very strategically, uh, and in a phased manner. But nevertheless, एक informal तरीका उसका यही है कि getting new people so that the people realize themselves that the company, they cannot be very valuable for the company anymore, and so therefore ये old guard जो हैं organization men हैं, they would leave on their own. Exactly what is happening in Tapal के she brought in new people, she redesigned, and the older people they understood, और इस तरीके से खुद ब खुद ही जो इसका प्रॉब्लम था ऑफ रेड टेप वो रिजॉल्व हो गया। आखिरी स्टेज आ जाती है आपकी फॉर्मलाइजेशन की स्टेज के बाद। फॉर्मलाइजेशन की स्टेज तो अब है ना, तो वो शी इज डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम, एंड द लास्ट स्टेज which is elaboration stage, ठीक है। अब ये elaboration stage क्या है? The solution to the red tape crisis is a new set of collaborations and teamwork throughout the organization. Managers develop skills for confronting problems and working together. Self social control and self discipline reduce, अभी ये social control को पढ़ते हैं, self discipline reduce, and the need for एडिशनल फॉर्मल कंट्रोल्स, ठीक है। अब ये मार्केट कंट्रोल्स हैं बाय द वे, ये अभी हम देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी से चेंज करके, सोशल कंट्रोल से चेंज करके मार्केट कंट्रोल्स की तरफ। मैनेजर लर्न टू वर्क विद द ब्यूरोक्रेसी विदाउट एडिंग टू इट, ठीक है। तो वो यही लिखा है ना कि शी विल लर्न टू बी अ मैनेजर, सो eventually she will be a manager for all the older people. She wants to retain them and the new ones as well. So with time she will learn how to deal with both of them. Or simplification of the systems, building up the teams, earning their the confidence, because अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो पुराना ओल्ड गार्ड था उसकी क्या एडवांटेज थी? उसकी एडवांटेज तो ये थी कि वो तो लॉयल थे। ये नए वाले लोग लॉयल हैं नहीं, यही तो वो कह रही है कि hunting for that kind of talent is very difficult. So while it is really needed, but she has to provide the kind of environment where these highly competitive and professional people feel that they are they are growing as well. तो उनको ये यही कहती है कि इसने उनको प्रोवाइड किए है competitive salaries भी प्रोवाइड किए हैं, इंटरनेशनली competitive salaries भी प्रोवाइड किए हैं, and more important, a chance to grow, a chance to build new brands, and that is her going to be her greatest challenge, how she is going to retain this new team. अगर if she's done away with bureaucracy, then is she ready to deal with the market? तो ये जो need for revitalization है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। in the अभी right now she is dealing with the um, with the bureaucracy. Once she has deal with them, and she's on her way, the next step for her is going to be overcoming the crisis for revitalization, because once it reaches its maturity, it becomes more mature, then what? Then Pakistan will become a smaller place for it. So in the long run, she is slowly transforming from a business which is purely family owned to maybe in the long run going for an option where she goes for a public listing, okay, IPO, initial public listing. तो वो भी उसके माइंड में है। तो सेकंड पार्ट जो आपने ऑर्डर करना, और ये जो कुछ मैंने इस लेक्चर में बताया है वही जो है वो एक छोटे यू नो you can see the same things through this very good टेबल। इस टेबल से आपको जो है वो बड़े आसान तरीके से समझ, ये देखें ये वाला जो टेबल है वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टेजेस का जो टेबल है इसको भी आप यूज करके अगले वाले लेक्चर में मैं इसको भी दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। Okay, so this is going to end. In the last lecture I'm going to explain this this table